Okay, Asba, I've added you to the session. Please accept the invitation. Yeah. जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? जी, आप कैसी हैं और आपको मेरी आवाज क्लियरली आ रही Yes, है? it's clear. मुझे बिल्कुल आ रही है, मैं बिल्कुल ठीक Your हूँ। voice is a little low for me right now, Is it so better? that's why I'm asking you. Is it better now? It's still a little low. Is my voice clear? Yeah, it's clear. Okay. So if you can hear me and I'm audible, then I think then it's fine, right? Then we Yeah, can start with. I can hear you properly. Okay. Okay, so if anybody has joined us right now, I would like to give my introduction. I'm Dr. Hamd, and today we are going to be talking about a very interesting topic, which is the psychology of social media. I'm a doctor and I myself teach doctors, and with me is Miss Azba, who is a clinical psychologist, and she also does a practice at a private hospital, and she has conducted many sessions of psychotherapy with mental health patients. So today we are going to be talking about the psychology of social media. So before starting with this discussion, why did I choose this one? Well, you all know that either we love our cell phones or we hate our cell phones. I really think there's no in between. Either it's your best friend and you want to just take it with you everywhere, you want to sleep with it under your pillow, or you do not like it to the point that sometimes you just want to flush it down the toilet, right? So today we have Azba, and do you know, Azba, of course, you're the clinical psychologist here, that right now 85% of the world's population has a smartphone, and there are so many social media apps. I mean, that's a pretty large number, isn't it? Yes, it is. Like, especially in the adolescents, that is really in recent researches, it shows that social media has impacted positively and negatively both ways to in the generation. Okay, so when we talk about these cell phone devices, we all have cell phone devices and we all have social media apps. So before coming to any negative discussion about this, I would like you to tell me, I would like you to tell our viewers who are joining us now that what is the positive impact of social media apps on the mental health? Now, before you answer this question, I want to be clear that there's so many social media apps, and they are much more than even I would know about. I'm familiar with WhatsApp, or I have YouTube, I have Facebook, and there's also TikTok and lots of apps, right? Instagram. So what is the positive effect? Is there a positive effect on mental health when we talk about these social media apps? Technologies, it's definitely is great. It has made things very easy for us. हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें easy कर दी हैं technology ने. Now that depends on us कि हम उसका usage जो है वो किस तरह से कर रहे हैं. For example, like if आपने कोई shopping करनी है, तो you don't have to go to the market and you just can do it while sitting in your home. And बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए easy और helpful कर दी हैं. You can pay your bills from your house and you don't have to go. Especially in the period of pandemic, COVID pandemic, उस time पे बहुत ज़्यादा problem हुआ था that you were not able to meet people. काफ़ी months का gap था, years का gap था, but that was a thing जिसमें उसने आपको काफ़ी close किया था. You can make new connections to the people. You can make new friends. ये एक kind of एक community और एक setting हम इसको कर सकते हैं कि we do have an opportunity to set things for others as well, and to share our experiences with each other. So yes, it has like a lot of like fun and a positive. Are there any chemicals involved in the brain when we talk about the positive effect of social media on mental health? Are there any chemicals involved? Yes, the dopamine chemical and the oxytocin chemical that really involves. जैसे for example, when we do show the affection, जब हम affection show करते हैं, then oxytocin hit करता है, when वो release होता है, and the dopamine की जो baseline है वो हर इंसान के लिए different होती है, like हर किसी का threshold is different. So जब आप किसी भी baseline को hit करते हैं, if you like something, अगर आप कोई scrolling कर रहे हैं social media पे, आप कोई चीज़ देखते हैं जो आपकी पसंद की है, तो आपको डोपामिन हिट करता है.
and it gives you it is as addictive as जैसे alcohol के लोग addiction में होते हैं, and it gives them a really good feel. तो सोशल मीडिया पे जो चीज़ आप पसंद की देखते हैं, जो आप पसंद करते हैं, वो डोपामिन हिट करता है, एंड इट रिलीजेस अ सर्टेन केमिकल जो कि आपको एडिक्शन की तरफ लेके जाता है इन अ लॉन्गर रन. But before addiction, right now we're talking about the positive effect on mental health. So before addiction, there would be, of course, a positive effect because dopamine is the chemical which is released when we complete a task, and it gives us a sense of completion, a reward chemical, जिसको हम कहते हैं. So dopamine के तो positive effects before addiction, though there would be a definitely positive effect, wouldn't there be so? Exactly, there is a baseline. अगर आप उस baseline एक continuous एक dopamine जो है वो continuously आपके body में और mind में एक run करता है. So if you are going to do all goals, आप achieve करेंगे goals, आपकी achievements होंगी, तो definitely it is going to give you a good sense of achievement and a player. But on other hand, excess जो है वो इसको फिर negatively भी hit करना शुरू कर देती है. Well, what about oxytocin? That's the other chemical you mentioned. What is the effect of the release of oxytocin on the brain? Oxytocin is just like social media pay when we, for example, if we have posted something and we got likes, that is going to lead towards the sense of affection. Okay, someone is liking us. When you are having a feeling of being loved, that releases oxytocin releases. Okay, so these are some positive effects of social media, right? We feel loved, we feel better connected, we feel rewarded. So ये सारे तो positive effects हुए, and all of these positive effects are of course going to have that's good for your brain, right? अब जब negative effects की बात होती है तो आपने बताया that there is the addiction of dopamine. मतलब dopamine hits हो गए ना, like drug addiction, and this is just like alcohol addiction. So, but how can that be eventually bad for you? Maybe it can be the good sort of addiction, can it not? If on the positive side, if we see that, so definitely it's a good addiction. But जब हमारा जो balance है वो out हो जाता है, तो addiction जो है वो definitely comes out as a negative aspect. तो जब आप constantly एक चीज़ को use कर रहे हैं, you're scrolling social media and you're just like you're liking a certain thing in which you don't have it. तो definitely वो फिर आपको comparisons पे ले जाता है. So that's why it's going to hit you in a negative way. My question is, can this addiction lead to the addiction of social media lead to an obsessive compulsive behavior, which is actually a clinical condition? Addiction जो है वो definitely वो आपको obsession की तरफ लेके जाती है. Like your body need it again and again. आपको एक obsession आती है कि I want to do it. आपको एक thought आता है कि अब ये मुझे compulsion की तरफ लेके जाना है. Obsession और compulsion के दरमियान that is an anxiety. आपके अंदर constant anxiety होती है that I want to do act in a certain way. और वो बार बार हम सोशल मीडिया जैसे स्क्रॉलिंग है, हम लोग अपना हमारा जो फ़ोन होता है उसकी जो बीप है, उसकी फ्लैश है, दैट बज़ दैट एक्चुअली अट्रैक्ट्स, वो हमारा जो डोपामिन है वो हिट करती है, तो वो हमें बार बार ऑब्सेशन की तरफ लेके जाती है दैट वी कीप Okay, what about depression? Okay, so now we know social media can cause obsessive behavior. Can it cause depression? Can it cause clinical depression? Yes, it does. Because as we mentioned, the dopamine level कि उसकी baseline होती है, baseline is set for everyone. अब baseline को जब वो इसमें peaks आएंगे तो definitely it is going to be giving you a positive impact. लेकिन जब उसमें down side पे वो hit करेगा तो it is going to give you a low mood. Okay, I'm going to just interrupt you for a short while. Umar Haseeb Khan है, वो बता रहे हैं कि in 10 minutes of social media time, oxytocin levels can rise to much as high as 13%. और आगे शायद उन्होंने अपने वेडिंग डे की भी कोई एग्जांपल दी है कि वेडिंग डे पे जिस तरह ऑक्सीटोसिन लेवल्स जो हैं वो बढ़ जाते हैं. So I would encourage everybody to please give their comments and likes, and I will also be reading your comments throughout the session. So feel free to say anything you want to say about this. अच्छा ये बताएं अज़बा कि आपने बताया कि डिप्रेशन, क्योंकि डोपामिन इम्बैलेंस भी तो डिप्रेशन करता है ना, सो इट कैन लीड टू डिप्रेशन. अच्छा इसमें जो फैक्टर्स हैं डिप्रेशन क्यों होता है सोशल मीडिया यूजेज से, इफ यू कुड टॉक अबाउट दैट, क्या वजूहात हैं? कंपैरिजंस बहुत ज़्यादा हैं, कंपैरिजंस, यस, कंपैरिजंस बहुत ज़्यादा हैं, और उसमें बेसिकली एक्सट्रोवर्टेड और इंटरनल कंपैरिजंस बहुत ज़्यादा, एक्सटर्नल कंपैरिजंस बहुत ज़्यादा हैं. लोग देखते हैं सोशल मीडिया पे, वो देखते हैं कुछ लोगों के साथ हम लोग डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारी फैमिली, हमारे फ्रेंड्स हैं, हम उनको देखते हैं. कुछ लोगों के साथ हम डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होते, जैसे बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया सेलिब्रिटीज़ हैं, वी आर नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड टू देम.
सो दैट डिपेंड्स कि हम अपना कंपैरिजन जो है वो किससे कर रहे हैं, जो Right. So जो because external people tend to share the highs of their lives more on exactly, social media and not the lows of their lives. So yes, obviously, when we look at somebody else's life displayed on social media, especially इसमें I would like to mention Instagram envy. You know, this is an actually a term which has been coined, that is Instagram envy, because Instagram is all about pictures and photographs. And and we obviously you would share the best moments of your life, और फिर उस पे एक obviously एक comparison भी आ जाता है. Although we all have our own trajectory in life, but this can lead to a feeling of depression. And this, there's another thing, I'm not so much familiar with the lingo. ये जो younger crowd है इनको ज्यादा पता होगा. ये FOMO क्या होता है? FOMO. What is FOMO? FOMO is basically a feeling of missing out. For example, आप देख रहे हैं constantly, आप देख रहे हैं लोग सोशल मीडिया पे अपनी हॉलीडेज को पोस्ट कर रहे हैं. सो यू आर लाइक दैट हमारे पास ये नहीं है, या हम तो सिर्फ या तो काम करें या हम सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं. So we don't have any other activity and people are like enjoying and they are just going on the holidays and all. So that is like when you are having a feeling of missing out, that you're not a part of that whole thing जो कि सोशल मीडिया पे आप देख रहे हैं. So it's kind of an another comparison कि आप comparison करते हैं कि आप अच्छा, देखते हैं कि मुझे ऐसा लोग लगता है कि जब से ये सोशल मीडिया आया है तो फिर लाइफ इंजॉय करने का प्रेशर बढ़ गया. yes ऐसा ही है ना? कि that's हमें ये that is फील होता है कि हमें अपनी लाइफ ज्यादा इंजॉय करनी है और हमने उसको फिर शेयर करना है और हमने उसको बताना है हमने सबको कि हम अपनी लाइफ में कितने खुश हैं और सेटिस्फाइड हैं एंड वी आर हैविंग द बेस्ट टाइम. तो वो जो लाइफ इंजॉय करने का प्रेशर है वो बढ़ गया है. और ऑब्वियसली क्योंकि वो अब आप अपनी खुशी से ज्यादा शायद दूसरों को सड़ाने के लिए हो या दूसरों को दिखाने that's के लिए, लेकिन आप उनको वो बताना चाह रहे हैं कि हमने अपनी लाइफ को बहुत भरपूर हम जो and है that's ना वो कर रहे what हैं, is हम इंजॉय happening कर with रहे the हैं. agents as well. सो दैट इज देयर. ये occasional जो events होते हैं हमारे उस पे भी ऐसे ही हो रहा होता है, like the weddings or the Eids as well, like we have to dress up and we have to post pictures. 12 बजे से पहले pictures post हो जानी चाहिए. So this is like this कि we are not into the events but we are more into showing on the social media. अच्छा, ये बताएं असबा कि एडिक्शन की आपने बात की, सोशल मीडिया एडिक्टिव है डोपामिन हिट्स की वजह से, डोपामिन रिलीज की वजह से. इट इज एज एडिक्टिव एज अल्कोहल एंड ड्रग्स. वी नो दैट दिस इज बेस्ड ऑन रिसर्च. एंड बट हाउ डू वी डील विद दैट एडिक्शन? मतलब हम डिटॉक्स कैसे करें अपने आप को अगर हम फील करते हैं हम बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम स्पेंड कर रहे हैं. अभी तो हम फिजिकल एस्पेक्ट्स की बात नहीं कर रहे हैं ना, अभी तो हम मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हैं. बट ऑफ कोर्स फिजिकली भी हमारी आईज पे, हमारे ये नेक पे, सर्वाइकल वर्टिब्रे, नेक पे हमारे बहुत बैड इफेक्ट होता है कॉन्स्टेंटली सिटिंग ऑन अ सेल फोन. तो इस सब को हम किस तरह से डिटॉक्सिफिकेशन की कोई टेक्निक्स आप बता सकती हैं? बेसिकली तो ये ओसीडी का एक ट्रेट है. लाइक फॉर एग्जांपल हमें एक काइंड ऑफ ऑब्सेशन है कि हम वी कीप ऑन चेकिंग आवर फोन्स अगेन एंड अगेन, दो देयर इज नथिंग बट वी स्टिल डू चेक के मे बी कुछ हो, या अगर हमने पोस्ट किया तो हम बार बार देख रहे होते हैं कि मे बी वी गॉट अनदर लाइक. तो एडिक्शन इज लाइक जैसे बहुत सारी एप्स हैं. स्नैपचैट इज वन ऑफ द ऐप जो कि इन रीसेंट टाइम्स मैंने देखी है कि उसमें एक स्नैप स्ट्रीक आती है. सो उसमें लोग एक दूसरे का ना वो दे कैन सी इट, दे कैन लिटरली सी दैट कि किसी का स्नैप स्कोर कितना है. तो दे एक्चुअली फील दैट कि हमारा जो है सोशल इंट्रैक्शन वो इतना लोगों के साथ नहीं है, और लोग इतने इंटरेक्ट कर रहे हैं लोगों के साथ कि उनका जो स्नैप स्कोर है वो बहुत ज़्यादा है. एंड दैट कॉज एंजाइटी. आई हैव सीन पीपल जो नॉर्दर्न साइड पर गए होंगे और वहाँ पे इंटरनेट का नेटवर्क का इशू होगा, एंड दे गेट द एंजाइटी कि हमारा 24 आवर्स से पहले वो स्नैप चला जाए, और अगर नहीं जाएगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा. एंड दे लिटरली हैव नो आइडिया कि वो So, इशू है क्या. मतलब how can we detox ourselves? Like वैसे तो I've heard that there are some apps जिनमें screen out time भी होता है, but अपने आप को फिर self discipline, like a whole lot of self discipline is required for that. या फिर हम ये करें कि हम सेल फोन उठा के किसी को दे दें और हम कहें कि हमें आपने नहीं देना, no matter if I'm ready to jump off a cliff for it, but आपने हमें ये सेल फोन हमारे हाथ में नहीं देना. किसी और को इन्वॉल्व करें अपनी डिटॉक्सिफिकेशन में, क्या करें? प्रैक्टिकली ये पॉसिबल होता नहीं है कि हम किसी को साथ रखें कि वो हमें मॉनिटर करे. वी जस्ट हैव टू कंट्रोल आवर सेल्फ रादर. सो द थिंग इज कि हमारे जो अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास 2 फोन्स हैं या मेरे पास एक स्मार्ट वॉच भी है, तो मेरी सारी एप्स हम सब कनेक्ट कर देते हैं. तो वो जो कांस्टेंट जो बज है, जो कांस्टेंट नोटिफिकेशन है, वो डेफिनेटली वो आपके अंदर एंजाइटी को डेवलप करते हैं और हम उसके एडिक्ट होते जाते हैं. सो व्हाट वी हैव टू डू इज कि हम लोगों ने कोई एक अपना मोबाइल फोन जो रखना होता है वो सिर्फ अपनी इंपॉर्टेंट टास्क के लिए करना होता है जो आप कैरी करते हैं हर वक्त अपने ओके. साथ.
तो Okay. आप उसमें हर चीज हर ऐप नहीं डाउनलोड करें, आप उसमें सिर्फ एक बेसिक चीजें करें जिसमें आप एक्चुअली लोगों से सिर्फ कम्युनिकेट करें। जो लेयर टाइम वाली एप्स होती हैं जैसे स्नैपचैट है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, Okay. टू दैट एंड द नेटफ्लिक्स एंड ऑल दीज थिंग्स, वो सारी जो एप्स हैं वो आप सिर्फ उन डिवाइसेस में रखें जो आपके घर पे डिवाइसेस होते हैं, जो आपके 24/7 आपके साथ नहीं होते। Okay, So like so that's जैसे one way of doing it. yes. Those who are joining us now in this session, I'm Dr. Hamd, and I'm speaking to Ms. Azba right now, who's the clinical psychologist, and we are discussing the psychology of social media. We're talking about the effects of social media on mental health. So if you are listening to our session, please feel free to give any comments and any questions that you have. Even during the session, we will try to answer those questions. Or you could also share your own experience with social media devices. अच्छा, अभी जो अगला सेगमेंट आ रहा है ना, वो बड़ा इंटरेस्टिंग सेगमेंट है, क्योंकि अज़बा मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ, देयर इज दिस थिंग कॉल्ड ऑनलाइन डिसइनहिबिशन इफेक्ट. Online disinhibition effect. I would like to tell my viewers that disinhibition means जब आपकी इनहिबिशन खत्म हो जाती है या फिर लेस हो जाती है. तो होता क्या है कि जब आप ऑनलाइन बिहेव कर रहे होते हैं तो आप में एक डिसइनहिबिशन आ जाती है, आप डिफरेंट तरीके से बिहेव करते हैं. आपके जो ऑनलाइन बिहेवियर होता है वो आपके एक नॉर्मल फेस टू फेस बिहेवियर में लोगों के साथ वो फर्क हो जाता है. तो इसको कहते हैं ऑनलाइन डिसइनहिबिशन इफेक्ट. तो इसके बारे में अज़बा आप हमें बता सकती हैं? Online disinhibition is basically coming from a cyber psychology. You know, when we are going to talk about the cyber psychology, definitely it is going to link with the crime as well. तो जो पूरी दुनिया जो है हम ऑनलाइन कनेक्टेड हैं, हम अब पूरी दुनिया में जब ऑनलाइन कनेक्टेड हैं तो हम रूल्स और रेगुलेशंस एक सर्टेन लिमिट तक लगा सकते हैं. जैसे बहुत सारा ज़्यादा आप ऐप्स पे देखिए, अगर जैसे इंस्टाग्राम पे आप कुछ करें तो उसमें वायलेशन उन्होंने मेंशन किए कि कुछ सर्टेन वर्ड्स आप करेंगे तो वो आपको नोटिफिकेशन भेज देते हैं. लेकिन ये हर टाइम इट्स लाइक रियली इम्पॉसिबल कि वो रूल्स और रेगुलेशंस को हर कोई फॉलो करता नहीं है. सो इट्स लाइक मोर इजी कि आप ऑनलाइन जब होते हैं तो आप कुछ भी कह के आप अच्छा, साइट पर हो जाते पहले हैं. तो इसकी टाइप्स बताएं ना. आर देयर एनी टाइप्स ऑफ Yes, there are. ऑनलाइन डिसइनहिबिशन इफेक्ट? So it's a there are two types basically, benign है और toxic है. So पहले तो benign आप बताएं बिनाइन वाली. आई वांट टू हियर द गुड न्यूज़ फर्स्ट. व्हाट अबाउट द बिनाइन वन? तो benign is basically जिसमें आप लोगों को काइंड ऑफ सपोर्ट भी देते हैं. आप कुछ सर्टेन एप्स भी हैं जिसमें आप एनोनिमस हैं, बेसिकली आपको कोई जानता ही नहीं है, बट यू कैन टॉक अबाउट सो मेनी थिंग्स टू दैम एंड यू कैन गेट अ सपोर्ट फ्रॉम दैम. आप उनसे बहुत ज़्यादा शेयर करके बगैर जजमेंटल, जैसे हम अगर मेंटल हेल्थ की बात करें तो इट्स वेरी स्टिग्मेटाइज्ड, स्टिल अभी तक बहुत स्टिग्मेटाइज्ड है. तो उसमें क्या होता है कि लोग आपस में बात करते हैं अबाउट देयर इश्यूज एंड दे डोंट हैव अ फियर ऑफ बीइंग जज्ड एंड दे जस्ट से things and they just get the suggestion or solution of that thing जिसमें definitely it's going to help them. So I And on think that, when we talk about benign disinhibition, it means that people are more willing to share their life stories or their feelings online. And yeah. this is sometimes a good thing when it comes to like group therapy. अभी जो आप बता रही हैं mental health के हवाले से, तो वो तो group therapy की बात होगी ना. तो फिर वो अच्छा होता है कि ऑनलाइन एक दूसरे के साथ शेयरिंग में वो इजी रहते हैं. एंड आई थिंक ऑनलाइन में स्पेशली जो इंट्रोवर्ट्स हैं शायद उनके लिए बहुत अच्छा है कि वो अपनी शेयरिंग कर लेते हैं और स्टीरियोटाइप्स ब्रेक करने में इट्स अ गुड थिंग. अब ये बताएं कि टॉक्सिक डिसइनहिबिशन क्या है? हाउ कैन डिसइनहिबिशन बी अ बैड थिंग? It is actually a very rude जिसमें लोग जो हैं वो ऑनलाइन कमेंट्स करते हैं under their pictures and they just don't think before saying rude अच्छा, comments or सॉरी, बिनते मेहर हैं जो कह रही हैं engaging in other useful things, awareness and self control is the need of time. Yes, we will be talking about that. बिनते मेहर, आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि जो important बात है वो ये है कि useful things में आप अपने आप को engage करें. जी अज़बा, so going back to that toxic yes. disinhibition. तो हार्श कमेंट्स कर देते हैं, हम काफ़ी रूड हो जाते हैं ऑन द कमेंट्स एंड वी जस्ट ट्राई टू बुली ऑनलाइन. हम लोगों को बुली करना शुरू कर देते हैं जिसमें देयर इज अ टर्म लाइक ट्रोलिंग हम काफ़ी शुरू कर Trolling, देते हैं. right? Trolling. What is trolling? What is a troll? I still am not familiar with so much lingo जो कि use होती है social media पे. तो what is a troll? Troll किसको कहते हैं online जो हमारी language है उसमें? Troll is basically something when someone is trying to insult your taste, whatever you're wearing, whatever you're doing, the other person is going to insult it. That
इस तरह से नहीं होना चाहिए. According to them, they think that it's you know it's good for them. कि वो कह रहे होते हैं कि हमने तो उनके फायदे की बात की, but that is not a constructive criticism. So you basically have to when you are going to criticize someone, so definitely you are going to insult their taste. जो आपका टेस्ट है जरूरी नहीं कि वो दूसरे के टेस्ट से मैच करता हो. एंड टेस्ट के अलावा असबा मैंने देखा है पोस्ट्स पे भी बहुत इंसल्ट्स आ रही होती हैं. लाइक अगर किसी ने कोई पोस्ट शेयर कर दी है तो उस पोस्ट को देखने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं ना. आप उसको पॉजिटिव लाइट में भी देख सकते हो, आप उसको नेगेटिव लाइट में भी देख सकते हो. तो समटाइम्स पोस्ट पे बहुत बैशिंग हो रही होती है. मतलब हम तो कोई पोस्ट, मैं तो पर्सनली मैं अपना बताती हूँ कि कोई पोस्ट शेयर करते हुए भी डर लग रहा होता है कि पता नहीं इस पोस्ट पे कितनी बैशिंग होगी और कितना उस पे जो है ना कोई ऑफेंसिव कमेंट ना आ जाए या कोई ऐसी बात. तो ये वाली जो चीज है, ये जो ट्रोलिंग होती है और जो लोग करते हैं, इसका भी तो मेंटल हेल्थ पे जिनके साथ वो कर रहे हैं, जिसको आप साइबर बुलिंग भी कह सकते हैं, साइबर बुलिंग, बहुत इम्पैक्ट होता होगा मेंटल हेल्थ पे. Yes, exactly. 100% उसका impact होता है because there are few factors जिसमें there's the factor dissociative anonymity है जिसमें you don't know each other, आप जानते नहीं किसी को तो आप कुछ भी कह देंगे, ठीक है, and you don't take the responsibility of it. आपको लगता है कि क्योंकि हम ऑनलाइन बैठे हुए तो we don't have the responsibility, फिर we do have all the rights to say anything. And then there is a factor of being invisible as well, like you can't see each other. You're not अच्छा असबा, ये anonymity वाला फैक्टर तो डेफिनेटली है, because when you don't know, nobody knows your identity, you think you can say whatever you want. But there's also another factor. Maybe I have noticed that even if anonymity is not there, but because there's no face to face interaction. क्योंकि देखें, जब human beings हम face to face बात कर रहे होते हैं, हम एक दूसरे के जो है फेस एक्सप्रेशंस देख रहे होते हैं, और हम जब बात कर रहे होते हैं तो हम वो जो क्यूज हैं, जो हमारी नॉन वर्बल क्यूज हैं, उनको भी हम पिक कर रहे होते हैं. लेकिन जब ऑनलाइन इंटरेक्शन होती है उसमें ये सारा एलिमेंट मिसिंग होता है. हम ये नहीं देख रहे कि हम जो बात कर रहे हैं उसका अगले पर्सन पे क्या इफेक्ट हो रहा है, वो किस तरह से रिएक्ट कर रहा है. हो सकता है वो हंस रहा हो लेकिन उसके एक्चुअल में आंसू दुख के निकल रहे हो आपकी बात पे, उसको बुरी लग रही हो. लेकिन ये जो फैक्टर है, ये भी तो इम्पोर्टेंट है ना इसमें. Yes, exactly. क्योंकि इसमें हमें लगता है कि हम एक ना उसमें परसीव्ड प्राइवेसी ले लेते हैं. हमें लगता है कि बस हम दो ही बात कर रहे हैं, जिसको मैंने कमेंट्स लिए तो हम दो ही देख पा रहे हैं. बट दैट इज नॉट द फैक्ट. हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी वो नहीं लेते सोशल मीडिया पे. लाइक हम जो भी कह रहे हैं वी आर लाइक yes, this is over right. हम for example ऑनलाइन गेमिंग लोग खेलते हैं and they do have like a lot of उसमें issues उनको होते हैं और कुछ भी कह देते हैं and they take it as a game. They're like it's a part of game. Like we can say can do it, trolling or bullying. Because they feel that this is not perhaps going to have such an impact on the next person. अच्छा, एक तीसरा फैक्टर भी है. एक तो हमने we are talking about the effect of trolling or cyberbullying on mental health. For those who are joining us right now, please feel free to give your comments about this topic. तो cyberbullying में हमने ये 3 फैक्टर्स हम बात करें. एक तो ये कि anonymity की वजह से लोग ज्यादा offensive comments दे देते हैं ऑनलाइन. प्लस जो दूसरी बात थी वो ये कि क्योंकि फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं है तो वी कैन नॉट सी द एक्सप्रेशंस ऑफ द पर्सन हु वी आर टॉकिंग टू. देयर इज आल्सो अ थर्ड फैक्टर एंड दैट इज लैग टाइम. लैग टाइम क्या है असबा, ये तो बताएं. लैग टाइम में बेसिकली ये होता है कि you have said something and now you disappeared. तो आपके पास एक तो ये है कि आपके पास टाइम भी होता है उसको कमेंट करने का, आप उसके बारे में सोचते हैं और आपने कमेंट कर दिया, अब आप जाएंगे ना, you will have a time to think about it and then you'll come back and comment again. So यानी कि कोई बात ऐसी की, चीकी कमेंट दिया और फिर उसके बाद वो चीकी कमेंट दे के गायब हो गए या सी यू लेटर कह के भाग गए. सी यू लेटर, ठीक है, दिल तोड़ दिया और फिर सी यू लेटर कह के भाग गए. फिर तो इस तरह के सिनेरियो में यू फील दैट यू आर नॉट गोइंग टू बी आंसरेबल फॉर योर कमेंट्स. अच्छा, मुझे ये लगता है असबा कि जब इस तरह की साइबर बुलिंग होती है तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट सिर्फ उस पर नहीं हो रहा होता जिसको बुली किया जा रहा है, बल्कि इसका नेगेटिव इम्पैक्ट बुली पे भी हो रहा होता है. जो साइबर बुलिंग या ट्रोलिंग करते हैं उनमें भी तो आप देखें फिर एग्रेशन बढ़ जाता है. क्या वो ज्यादा एग्रेसिव नहीं हो रहे होते उनमें, जैसे कि पोलाइटनेस की आप बात करें तो ये सारी चीजें जब एलिमेंट्स उनके अंदर, पोलाइटनेस खत्म हो जाती है तो उनकी अपनी पर्सनैलिटी पे भी तो इसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स होते होंगे. Basically trying to self-disclose their self. That is something which is like internally in their own self. तो वो उसी को ही सोशल मीडिया पे आके करते हैं because definitely on like face to face they cannot comment. आपके comments बिल्कुल चेंज हो जाते हैं, आपका तरीक़ाकारी चेंज हो जाता है जब आप face to face उसी चीज़ को ही कह रहे होते हैं जो आप ऑनलाइन कह रहे होते हैं. Like you're more precise and you're more wiser with the words. अच्छा,
असबा, हमने अभी बात की ऑनलाइन डिसइनहिबिशन की. इसके बाद the thing that I was wanting to ask you, that was about the seriousness of these issues. How seriously is social media impact having an impact on our brain or our mental health? हम इन issues को तो अगर lightly लें या फिर हम समझें कि नहीं ये एक serious problem हो सकती है. सीरियस प्रॉब्लम, जैसे अभी हम लोगों ने ओसीडी ट्रेट्स की बात की, एक चीज़ है जो आपके अंदर एंजाइटी कॉज कर रही है, विच इज़ लीडिंग यू टुवर्ड्स एंजाइटी, क्योंकि एडिक्शन है, आपका डोपामिन हिट करता है कॉन्स्टेंटली, और आपके पास वो लाइफस्टाइल नहीं है जो आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, और आप कॉन्स्टेंटली कंपेयर कर रहे हैं अपने आप को दूसरों से, तो वो आपका सेल्फ इस्टीम को लो करता है, आपको आपके जो सेल्फ इमेज को है उसको उसके कंसर्न्स डेवलप करता है, एंड देन यू स्टार्ट कंपेयरिंग योरसेल्फ विद योर, लाइक एक पीयर प्रेशर होता है काइंड ऑफ, कि जब जो अच्छा, ये बताएं इसमें कोई एज ग्रुप का इफेक्ट है? बिकॉज द स्टडीज दैट आई हैव रेड, दे हैव मेंशन्ड दैट दिस हैज हैविंग मोर ऑफ एन इम्पैक्ट ऑन एडोलेसेंट्स, दोज हु आर इन देयर अर्ली 20s. क्योंकि अभी उस टाइम पे स्पेशली टीनेज ईयर्स की अगर हम बात करें तो अभी हमारी जो सेल्फ इमेज है वो डेवलप हो रही होती है, और टीनेज ईयर्स बहुत सेंसिटिव होते हैं टू द कमेंट्स और द ओपिनियंस ऑफ अदर पीपल. उस टाइम पे आपको एक्सटर्नल वैलिडेशन चाहिए होती है, तो ये वो टाइम है जो इतना सेंसिटिव है. और अब ये जो टाइम है, क्योंकि अब ये सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा रोल आ गया है सेल्फ इमेज में, तो उसमें फिर आप समझती हैं कि ये बहुत मैटर करता है कि एज ग्रुप मैटर करता है? एडोलेसेंस पे इसका जो है वो ज़्यादा है, लाइक उसमें प्रेवलेंस ज़्यादा है. बिनते मेहर पूछ रही हैं ग्लोबल प्रेवलेंस क्या है, द मेंटल हेल्थ इश्यूज आर प्रिवेलिंग मोर हियर और इज इट द सेम ग्लोबली? दिस इज अ क्वेश्चन बाय बिनते मेहर फॉर यू, असबा. ग्लोबली इज लाइक 35% जो है वो इंक्रीज हुआ है इन रीसेंट ईयर्स इन एडोलेसेंस. यस, एंड अगेन इट्स नॉट इवन इन द एडोलेसेंस, ये जो हमारा जो एडल्ट्स हैं लेट एडल्टहुड में जो हैं उनमें भी इंक्रीज है, बिकॉज दे डोंट हैव एन एक्टिविटी. अभी बहुत सारी चीजें जो हम सिर्फ इंटोर ही कर रहे हैं. सो एवरीवन इज लाइक सोशल मीडिया, एवरीवन इज यूजिंग सोशल मीडिया, और उसी पे वो रीड भी कर रहे हैं, क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं. सो इट्स लाइक इंक्रीज इन दैम. This is a very good point, Asba. I would like to highlight this point also to the viewers कि हम समझ रहे हैं कि ठीक है सोशल मीडिया का नेगेटिव इम्पैक्ट हम अगर बच्चों पे देख रहे हैं, हम एडोलेसेंट्स पे देख रहे हैं, मगर हमें ये नहीं सोचना चाहिए that it is only this age group which is being affected, whose mental health can be affected by social media. It is also the age group which is the older age group. So they are parents and grandparents, everybody is now having a smartphone and they are watching either lots of videos and continuously उनकी बहुत ज़्यादा streaming वो देख रहे होते हैं, और वो जो input है उसका उनकी brain पे affect हो रहा होता है. So this is a very important point that you just mentioned over here. Okay, if anybody has any questions, please feel free to ask questions. And if anybody has any comments, कोई experience आप share करना चाहते हो, so please share your experience. So right now, Asba, आपने बहुत अच्छी बातें की हैं. मुझे ये बताएं कि हमने नेगेटिव और पॉजिटिव तो डिस्कस कर लिए जो इम्पैक्ट हो सकते हैं, और इसकी सीरियसनेस में ये बताएं कि आर देयर स्टडीज व्हिच शो अस दैट सुसाइड रेट has increased because of social media? What about this? Suicide rate is increased in social media because of the social media in adolescents again. Okay. Because they really cannot, they really cannot identify कि fictional क्या है और real क्या है. So they are more into this कि जो वो देखते हैं उनको लगता है कि that is the real thing. यही सब है. लोग जो अपने highs को ही सिर्फ post कर रहे हैं, तो they just like start comparing their self, अपना lifestyle को compare करने लग जाएंगे, अपने career को compare करने लग जाएंगे, educational side को compare करने लग जाएंगे, और and even the thing which I have witnessed, they started comparing their parents, whatever they have done, और वो उनको कंपेयर करने लग जाते हैं कि उनके पेरेंट्स ने इतना अच्छा किया तो हमारे पेरेंट्स ने उनकी वजह से. अच्छा, पर अगर पेरेंट्स को कंपेयर करें तो बच्चों का भी तो कंपैरिजन हो सकता है ना. अब अगर दूसरे बच्चों के मार्क्स इतने आ रहे हैं, बिकॉज यू नो इवन सम मदर्स दे शेयर द रिजल्ट्स ऑफ देयर चिल्ड्रन और दे अचीविंग ट्रॉफीज और गेटिंग गोल्ड मेडल्स, तो उसमें फिर अब अपने बच्चों का भी तो कंपैरिजन आ जाता है. अच्छा, एक बात ये है कि कंपैरिजन हैज ऑलवेज बीन देयर इन सोसाइटी, ये तो कोई नई बात नहीं है. शायद सिर्फ ये कि सोशल मीडिया ने उसको इनहांस कर दिया है, it has blown it to a larger proportion, to a greater level. Yes. So now उस पे accessibility ज्यादा हो गई है. यानी कि मैं अगर यहाँ पे बैठी हूँ
और मुल्तान में बहुत गर्मी है, लेकिन मेरी कोई शायद बचपन की सहेली या फ्रेंड वो किसी ऐसे स्पॉट पे है जहाँ पे वो स्कीइंग कर रही है माउंटेन्स पे, तो मेरा बहुत दिल करेगा और मुझे ऐसे लगेगा कि शायद मैं लॉस पे हूँ कि आई एम नॉट एबल टू एक्सपीरियंस दैट। नाउ दिस इज समथिंग जो कि शायद मैं वैसे ना देख पाती, लेकिन सोशल मीडिया की वजह से मुझे वो इमेजेस नजर आते एंड हैं। देन अगेन वही बात अच्छा जो आपने की मुबशरा, सॉरी मैं आपको, मुबशरा असलम कह रही हैं, इफ वी फील अ वेव ऑफ एंजाइटी विदाउट एनी रीजन एंड वी डोंट फील गुड इन द कंपनी ऑफ पीपल, व्हाट शुड वी डू? जी ओके ये, जी ये थोड़ा वो ये कहती हैं कि देखिए हमें, मुझे लग रहा है मुबशरा जो बात करना चाह रही है वो शायद ये, क्योंकि सोशल मीडिया के अकॉर्डिंगली मैं इसको अगर देखूं तो शायद ये कहना चाह रही है कि इन द कंपनी ऑफ पीपल वी डोंट, इफ आई डोंट फील सो गुड, और इफ आई डोंट वांट टू लाइक फिजिकली इंटरेक्ट विद पीपल, एंड ऑफ कोर्स देन यू हैव द सोशल मीडिया ऐप, उस पे आपको ज्यादा अच्छा लग रहा है इंटरेक्टिंग विद पीपल, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगी? अच्छा देयर इज अ थिंग लाइक हमें ये बात वो जब हमें हमारे पास पेशेंट्स पे आते हैं देयर लाइक देयर इज नो रीजन टू इट, मतलब एंजाइटी हो रही है बट कोई भी रीजन नहीं है, बट हमेशा बैक ऑफ योर माइंड लाइक आपके अनकॉन्शियस में देयर इज अ थिंग, हमेशा किसी वजह से एंजाइटी होती है, बगैर वजह की एंजाइटी नहीं होती, या तो जेनेटिक्स में हो सकता है, दैट इज वन ऑफ द फैक्टर, बट अगेन हमेशा कोई ट्रिगर मिलता है आपको, देयर इज सम ट्रिगर, अगर आपको किसी की कंपनी अच्छी नहीं लग रही है तो देन अगेन देयर इज अ ट्रिगर, ज़रूरी नहीं है कि वो ट्रिगर उसी इंसान की वजह से आए, वो किसी भी और इंसान की वजह से आ सकता है। व्हेन यू आर नॉट योरसेल्फ तो डेफिनेटली आपको किसी की भी कंपनी अच्छी नहीं लगती है, बिकॉज यू आर जस्ट ट्राइंग टू हैंडल योर ऑन सेल्फ, योर ऑन एंजाइटी एट दैट मोमेंट, तो आप अपना जो 100% है वो किसी के साथ भी बैठे हो, आप एंजाइटी नहीं हैंडल कर पा रहे तो आप वो दे भी नहीं सकते। सो देयर इज ऑलवेज अ रीजन टू इट कि आप एंशियस क्यों हो रहे हैं, आपको एंजाइटी क्यों हुई हुई है। मेरे जहन में वो कोटेशन आ रही है, जस्ट यू जस्ट सेड मेंशन दिस, दैट सम पीपल दे ब्रिंग हैप्पीनेस व्हेन they come into our life, and some people bring happiness when they leave our life. या सो ये वो वाली बात होगी, कुछ लोग जब वो चले जाते हैं तो ज्यादा खुशी महसूस होती है, तो इस वजह से आपने वो बात की। एनी हाउ मैं पर्सनली भी ये समझती हूँ कि दिस इज ट्रू, इट हैपेंस समटाइम्स दैट फिजिकली यू डोंट वांट टू एंगेज विद सो मेनी पीपल, बट ऑनलाइन आपको अच्छा लग रहा होता है। आई थिंक उसका एक फैक्टर ये भी होता है, सिमिलर टेस्ट वाली बात, कि आप किस बात पे कनेक्ट कर रहे हैं, जिस तरह की बातें आप पसंद करते हैं, जिस तरह की समझ लें आपकी, परहैप्स आप एक बुक रीडर हो, आप चाह रहे हो कि आप अपनी तरह की कम्युनिटी में बात करो जिनको आपकी बात समझ आए, अगर आपको वो कम्युनिटी फिजिकली नहीं मिल रही तो आपके अंदर हमेशा एक लोनलीनेस होगी। लेकिन सोशल मीडिया में क्या है, नाउ यू कैन गेट ऑल ऑफ दीज सॉर्ट ऑफ कम्युनिटीज ऑनलाइन, एंड देन यू कैन टॉक अबाउट दोज थिंग्स व्हिच यू वांट टू टॉक अबाउट। सो ये भी एक वजह होती है कि एक पर्सन जो है वो फिजिकली इतने लोगों से नहीं मिलना चाह रहा, फेस टू फेस वो नहीं मिलना चाह रहा वो इंसान, लेकिन वो पसंद करता है कि मैं ऑनलाइन बैठ के दूसरों के साथ गुफ्तगू करूं और दूसरों के साथ अपने जो है ना टेस्ट अपने शेयर करूं या अपने आइडियाज डिस्कस करूं। सो देन दिस अगेन इज दे अ डोंट वेरी वांट इंपॉर्टेंट फैक्टर, टू बी राइट? जज। हाँ एग्जैक्टली, और वो उनको होता है कि हमें फिर जज ना किया जाए हमारे टेस्ट पे या हमारे ओपिनियंस पे, Yes, बट of course. जब We don't want to be judged, and I think at the end of the day, ये एक human nature है that we just want to be understood. यस Perhaps we want to be एग्जैक्टली accepted. We want to be understood. तो वो जो acceptance है वो हमें social media पे मिल रही है। फिर वही बात हो गई कि इसमें जो positive बात है, जो शुरू में हमने कहा था, जब acceptance मिलेगी social media पे तो oxytocin release होगा. Oxytocin is the chemical which is released in the brain when we feel loved, right? लव When we feel treasured, right? Cherished. या तो ये बहुत अच्छी एक फीलिंग होती है जो हमें मिल रही होती है। बट ऑफ कोर्स फिर वही बात जो आपने शुरू में की कि टू मच ऑफ अ गुड थिंग कैन बी बैड, इट कैन बी एडिक्टिव। अगर एडिक्शन हो जाए देन इट इज नॉट अ गुड थिंग, क्योंकि फिर आप उस पर डिपेंडेंट हो, फिर आप उसके बगैर रह नहीं सकते। अच्छा अजबा, आप मुझे ये बताएंगी कि विशियस साइकिल ऑफ सोशल मीडिया ये क्या है? विशियस साइकिल इज समथिंग जिसमें आपका जो साइकिल है आप ब्रेक नहीं कर पा रहे, इट्स लाइक यू नो एक सर्कुलेशन जो है ना वो कुछ सर्टेन चीज़ों के आसपास ही है। इट्स लाइक जैसे कि आपने कुछ कोई बात की है अभी एंड यू स्टार्ट लाइक सर्चिंग ऑन सोशल मीडिया एंड आप नेक्स्ट डे आपको उससे रिलेटेड सारा कुछ आपके स्क्रीन पे आना शुरू हो जाता है एंड यू कैन स्टॉप योर सेल्फ, आइदर वो ऑनलाइन शॉपिंग है या कुछ भी है, यू लाइक सर्टेन थिंग एंड यू लाइक ये कीप ऑन क्लिक चेकिंग योर फोन, बेट क्या चीज होती है? व्हाट इज क्लिक बेट? everything is on a clickbait, ठीक है कि आप हर चीज को like you are on a like clicking and you're just like getting things, जैसे for example अगर आपने मूवी देखनी है तो you don't have to check the show and you don't have to check the time. Now हम थोड़े से impatient हो गए, everything is like we want कि बस click करें और सब कुछ हो रहा है,
एंड दैट इज वन थिंग कि जो कि अभी हम लोग अपनी जो नॉर्मल लाइफ में उसमें भी ये करते हैं कि हम कहते हैं कि बस क्लिक करिए और जो हमने सोचा वो हो जाए। अच्छा, ये बात बिल्कुल सही है कि हमारे अंदर पेशेंस भी अब खत्म हो गया है। लाइक आई सी अ पिक्चर, मार्केटिंग हो रही है, मेरा हैंडबैग अभी नहीं आया। मैं खुद भी वैसे भी वेट कर रही हूँ, मुझे लग रहा है कि नहीं ये कि मेरा हैंडबैग अभी अली एक्सप्रेस पे मैंने ऑर्डर किया एंड शुड हैव बीन हियर। मैंने उसकी पिक्चर देखी थी एंड ऑन माय सेल फोन एंड आई वांटेड ऑन माय टेबल, आई वांटेड इन माय हाउस द वेरी नेक्स्ट डे। अब वो रोजाना मैं बैठ के देखूंगी कि अली एक्सप्रेस पे अब कहाँ पे मैं ट्रैकिंग कर रही हूँ, मेरा हैंडबैग कहाँ पहुंचा है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर मी becomes okay, what is the current status of my handbag. Though I'm just giving an example over here that we want instantaneous results, right? We want instantaneous results कि जो भी हम कर रहे हैं, और तो हमारे अंदर फिर वो patience खत्म होता जा रहा है ना. We use the term here institutionalized impatient. So basically हम Thank basically you क्या करते Abru, nice to see you as well. Although आपकी वो छोटी सी डीपी मुझे नजर आ रही है, लेकिन क्योंकि आपने अभी nice to see you बहुत कहा, तो nice to see you as well. जी बताएं अज़मा. So we are basically growing up in a world जहाँ पे ना instant gratification, we are more into that. कि हम हर चीज को हमें बस करना है. It's just like this that if we want to see a person तो हम उसे like we can text and instantly we get the reply as well. We can call and shopping करनी है तो we can do it online. Movie देखनी है तो you just have to log on and you just have to watch it. That's it. So everything is on a click. You don't have to be like patient with a certain thing. You don't have to make a plan out of it. And हम कब plan करते हैं, कब जाते हैं, तो वो जो इतनी we being impatient, वो जाहिर है वो हमें anxiety की तरफ ही लेके जाता है. Anxiety, this हम is a very good point that it causes anxiety. ऐसा yes ही है. अब यहाँ पे बच्चों का तो हमें पता है कि attention deficit जो different disorders हैं वो होते हैं because of using cell phones, tablets पे बैठने की वजह से और ये सारी gaming की वजह से. तो adults में भी this is causing a lack of patience and then as you mentioned it can lead to anxiety. अब जैसे anxiety. मुझे बहुत एंजाइटी हो रही है कि मेरा हैंडबैग कब पहुंचेगा. सो ये ना एंजाइटी है, और ये बिल्कुल फजूल सी चीजों की एंजाइटी है. थिंग्स दैट Especially जब शुड आपने नॉट मैटर. ऑनलाइन पे कर दिया और फिर आप हाँ, बिल्कुल फिर वो लाइक और यू कैन नॉट भी एंजाइटी बढ़ गई कि मैंने तो पेमेंट भी कर दी है, तो मेरे तो पैसे गए, राइट. yeah सो exactly. ये वाली वो बात हो गई. अच्छा, दिस वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग सेशन. इफ एनीबडी हैज एनी क्वेश्चंस दे कैन आस्क अस. एंड ऑल्सो बिफोर जस्ट एंडिंग इट राइट नाउ, हमने सारी ये मेंटल हेल्थ से रिलेटेड बातें की कि सोशल मीडिया का क्या इम्पैक्ट होता है. और अज़बा, आप मुझे ये बताएं कि व्हाट वुड बी योर टेक होम मैसेज फॉर द ऑडियंस, फॉर ऑल ऑफ द ऑडियंस, चाहे यंगर है या ओल्डर है, सबके लिए क्या टेक होम मैसेज होगी? I guess I'll definitely talk about being impatient. अच्छा, जैसे जस्ट अ मोमेंट, आपको फिर मैं रोक रही हूँ. उमर हसीब खान पूछ रहे हैं, व्हाट्स योर व्यू, डज सोशल मीडिया ब्रिंग अस टुगेदर और टेयर अस अपार्ट? अच्छा उमर, अभी हमने शुरू के सेशन में ये बात सारी की थी. हमने इनिशियली ना सारी पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन आवर मेंटल हेल्थ, पहले हमने उसकी बात की थी कि वो पॉजिटिवली किस तरह इम्पैक्ट करता है, और फिर हमने नेगेटिव्स की बात की. सो बात ये कि उमर, दिस इज अ डबल एज्ड सॉर्ड. ठीक, दिस इज व्हाट आई वुड से कि इट्स अ डबल एज्ड सॉर्ड. अभी ये बात है कि इसमें पॉजिटिव भी है और इसमें नेगेटिव भी है. सोशल मीडिया को हम नहीं ब्लेम कर सकते. हमें ना अपने आप को भी फोकस करना है कि हम उसको किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं. यहाँ पे एक पॉइंट है जो कि मैं मेंशन करूंगी. यू नो दैट्स ओके इफ यू जॉइन लेट, आई एम ग्लैड यू आर हियर. द थिंग इज कि आई वुड लाइक टू मेंशन अबाउट एल्गोरिथम्स. ये आपको पता है कि आप जो चीज पसंद करते हो, जिस पे आप क्लिक करते हो, सोशल मीडिया है, चाहे वो मार्केटिंग कर रहे हैं प्रोडक्ट्स की, या कोई वीडियो है यूट्यूब पे जो आपको अच्छी लग रही है, जब आप उसको क्लिक करते हो, आपको पता है कि आफ्टर अ फ्यू डेज आपको उसी तरह की सिमिलर मजीद वीडियोस और उसी तरह की जो है आपको डिफरेंट वेबसाइट्स जो भी हैं, वो आपको इन्फ्लक्स शुरू हो जाएगा अपने सेलफोन में, उसी तरह का सिमिलर. सो जिस पे आप करेंगे क्लिक, आपको उसी तरह का मटेरियल आना शुरू करेगा. दैट इज हाउ सोशल मीडिया वर्क्स. सो लेट्स सपोज आप किसी पॉजिटिव वीडियो को देख रहे हैं, मे बी इट्स अ वीडियो अबाउट एक्सरसाइज और योगा, और इट्स अबाउट मे बी इवन अ कुकिंग वीडियो, तो आपको इस तरह की सिमिलर वीडियोस आने शुरू हो जाएंगी. आपके ऑक्सीटोसिन लेवल्स हाई होंगे, आपको डोपामिन भी रिलीज होगा, आपको अच्छी फीलिंग भी होगी. But if you are going to let's suppose watch something which is not a very healthy thing, तो उस तरह की आपको सिमिलर फिर वीडियोस या अपडेट्स आना शुरू हो जाएंगे. क्योंकि देखिए ये सोशल मीडिया तो समझ लें एक तरह का एक मास्टर कंप्यूटर है, जिसने सिर्फ ये देखना है कि व्हाट डू यू वांट टू सी. उसने आपको वही चीज भेजनी है जो कि आप देखना चाहते हो. तो आप जिस चीज पे क्लिक करोगे आपको वही चीज मिलेगी. सो आई वुड से कि क्लिक ऑन पॉजिटिव थिंग्स सो यू गेट मोर पॉजिटिव स्टफ.
क्योंकि ये एक विशियस साइकिल है। Yeah. अच्छा, मेंटल हेल्थ इश्यूज एट द workplace. Acha, this is a very good topic. I think this deserves a separate discussion, and I also would like that everybody give me ideas. मेरे viewers अगर ideas दें तो हम उन topics को discuss करेंगे. So this is a very good one of mental health issues at the workplace, and next time we can discuss that. Right now we're talking about the effects of social media, the usage of smartphones on our mental health, the impact on our brain. बिनते मेहर कह रही हैं, yes true, all depends on us, either brings depression, anxiety or fulfillment. जी अज़बा, अब आप अपना टेक होम मैसेज देंगी प्लीज? Yes, so I was talking about one being impatient. जैसे students हैं, जैसे जब हम लोग career की तरफ जा रहे होते हैं तो we are so much into that क्योंकि हम लोगों ने एक certain life गुजारना शुरू कर दी and that is on a click. So जैसे हम कहते हैं कि click हो जाए और हर चीज़ आपके सामने आ जाए, we actually want कि हमारी educational time भी ऐसे ही गुजर जाए click पे, और जो हमारा career है वो भी हम इसी तरह से click पे हम वहाँ पहुँच जाएं जो हम चाहते हैं. So हम basically जो factor miss करता है वो यही है कि जो problem है that is one being impatient. So we really don't see a mountain. We don't really see a mountain कि हमने हमारे सामने एक mountain and we have to go there gradually and slowly. It's not a click. It's not on a click. तो जब हम लोग किसी भी इंस्टीट्यूट से एकेडमिक से हम निकलते हैं, किसी भी इंस्टीट्यूशन को कंप्लीट करते हैं अपने फॉर द करियर हम स्टार्ट करते हैं, तो वहाँ पे देयर इज़ अ थिंग कि हम चाहते हैं कि वी वांट टू मेक अ सर्टेन इम्पैक्ट ऑन अदर्स. अब बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि वी हैव सीन, हम लोगों ने लोगों से पूछा कि हाउ इज़ इट गोइंग, लाइक जब वो जॉब ज्वाइन करते हैं, वी आर लाइक हाउ इज़ इट गोइंग, एंड दे आर लाइक आई कैन डू इट, मुझे लगता है कि मैं क्विट कर रहा हूँ या मैं क्विट कर रही हूँ. ठीक है, आई गेस आई एम नॉट मेकिंग इट, मैं वो जो इम्पैक्ट मैंने सोचा था वो नहीं मुझसे हो रहा था, आई गेस आई एम गोइंग टू क्विट इट. सो वन बीइंग इम्पेशेंट कि उनको नॉर्मल लाइफ में भी ऐसे ही लगता है कि हर चीज़ बहुत ही ऐसी क्लिक पे हो जाती है, बट दैट इज़ नॉट द फैक्ट. So we have to see things like slowly and gradually we have to go and make a way towards our life and towards our career, and one has to stay patient. One has to go in a way कि एक robotic lifestyle होना चाहिए जिसमें आपका balance होना बहुत ज़रूरी है. जब भी आप out of balance जाएंगे तो चीज़ें आपके हाथ से बाहर जाएंगी. So the more So you will be this having a will, balance. but there are of course lots of factors which have a role in toxicity in the workplace. Definitely ये आपकी बात सही है अज़बा कि हमें खुद भी पेशेंट होना होता है जब हम किसी नई जगह पे जाते हैं, बट कई फैक्टर्स हमारे अपने कंट्रोल में भी नहीं होते. तो बट वी विल हैव अ सेपरेट डिस्कशन ऑन दैट बिकॉज दिस इज अ होल न्यू टॉपिक एंड इट इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ टुडेज डिस्कशन, बट वी विल बी टॉकिंग अबाउट दैट इन डिटेल. अच्छा, आज की जो हमने यहाँ पे बात की है, हम उसको जरा सम अप कर लेते हैं. हमने सोशल मीडिया की बात की है और हमने ये डिस्कस किया कि मेंटल हेल्थ के साथ इसका डेफिनेटली एक रिलेशन है. हम ये ना सोचें कि हम जिन डिवाइसेस पे बैठे हुए हैं और हम उन पे इतने आवर्स स्पेंड कर रहे हैं, इट इज नॉट डूइंग एनीथिंग टू आवर ब्रेन, इट इज डूइंग लॉट्स ऑफ थिंग्स. It is affecting the chemicals in the brain, and this can also have long-term effects. It can be linked with mental health issues like depression, anxiety, and even aggression. और जिस तरह से आपने अभी सारी ये बातें की कि पॉजिटिव्स के साथ नेगेटिव भी है, तो हमें खुद अपने आप को सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ डिसिप्लिन के साथ इस सोशल मीडिया को हमने यूज करना है. सो आई नो दैट्स चैलेंजिंग. मतलब अभी आप मुझसे पूछें तो मेरे लिए भी इट्स वेरी चैलेंजिंग. मैं इतनी यूज टू हो गई हूँ कि आई हैव टू लाइक जस्ट ओपन माई सेल फोन एंड अगेन लाइक एज इफ आई एम ओपनिंग माई फ्रिज एंड आई वांट टू सी समथिंग मैजिकली अपीयर कि कुछ मेरे लिए अच्छा यहाँ पे अपीयर होगा एंड इज गोइंग टू मेक मी फील गुड अबाउट माई सेल्फ. तो ये वाली वो चीज है जिसको हमने देखना है कि हम अपने आप को थोड़ा डिटॉक्स करें ताकि हमारे अंदर एडिक्शन ना हो. बिकॉज यू ऑल्सो पॉइंटेड आउट कि कंपल्सिव बिहेवियर, OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ये भी इवेंचुअली हो सकता है बिकॉज ऑफ एक्सटेंसिव यूज ऑफ सोशल मीडिया. Exactly, that is the trait. आप किसी भी चीज को एक्सेस करेंगे it will lead you towards the any of the disorder. और जो OCD है वो basically anxiety का ही disorder है. Right. Okay, so thank you. I would like to thank you अज़बा कि आपने टाइम निकाला और आपने हमें इस टॉपिक से रिलेटेड जो है अवेयरनेस दी. एंड आई होप दैट आवर व्यूअर्स आल्सो फाउंड दिस यूजफुल. मिस अज़बा जो है वो she practices psychotherapy also, clinical psychotherapy, and at a private hospital. So she has experience with patients of mental health issues. And I am Dr. Hamd, and I like to make self-help videos.
other than my educational videos. So if we will be sharing this session on my page as well. I'll be uploading this session on my page as well, which is my profile, Dr. Hamd Sayed. And if you have any questions or any ideas for any other topics related to mental health awareness, आप वहीं पे उसी वीडियो में कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं. So thank you everybody for joining us today, and it was lovely, Azba, talking to you. So I'm Thank going you to so much end for today's session. Okay, take care. Because okay, हमारे जाने से पहले उमर हसीब का फिर क्वेश्चन आया है, प्लीज ऐड साइबर बुलिंग टू योर फर्दर लिस्ट, इट इज अ बर्निंग इशू. ओके उमर हसीब, आप ये वीडियो देखिएगा, हमने साइबर बुलिंग को भी डिस्कस किया था इसी सेशन में, वी टॉक्ड अबाउट इट. सो व्हेन आई शेयर दिस वीडियो, आप उसको बैठ के फिर देखिएगा, तो आपको वो साइबर बुलिंग वाला सेक्शन में शायद आपको इंटरेस्टिंग लगे. अगर फिर भी आपके कोई और क्वेश्चंस हैं या कुछ आपके सजेशंस हैं, तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, and I would like that. So Asba, take care. Allah Hafiz, and Allah Hafiz everybody. Allah bless you all. Thank you.